Okay, so I've started the recording of the class. So let's take an example. Mr. Anmol has a business in India. Now he needs a loan for that business. जो बिजनेस इंडिया में है उसके लिए उसको वो लोन चाहिए. उसका एकदम खास दोस्त यूएस में रहता है, तो उससे वो लोन मांगता है 10 लाख यूएसडी. बड़ा दोस्त है उसका, बड़ा आदमी है यूएस में, तो वो 10 लाख यूएसडी का लोन उसको दे देता है मिस्टर अनमोल को. अनमोल उसको इंटरेस्ट पे करता है, अगेन यूएसडी में पे करता है. तो बोरो किया यूएसडी में, पे भी हो रहा है यूएसडी में, इंटरेस्ट पे भी हो रहा है यूएस में, यूएसडी में. तो सवाल ये है कि ये जो इनकम है क्या वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है. तो आंसर है कि ये इंडियन इनकम है. इसी सेक्शन की वजह से ये सेक्शन क्या कहता है, अगर जो पैसे लिए गए हैं, जो पैसे बोरो किए गए हैं, वो पैसे इंडिया के किसी बिजनेस में यूज किए जा रहे हैं, then the interest is treated as Indian income. And once it is treated as Indian income, it will become taxable to all categories of employee, whether the friend is OR, NOR or NR, doesn't matter. जो पैसे बोरो किए हैं वो इंडिया में यूज हो रहे हैं, then the nature of income is Indian income, period. Similarly, let us change an example. Say वो जो दोस्त है आपका, दोस्त नहीं बनाते हैं उसको, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं. और मिस्टर अनमोल ने आउट ऑफ इंडिया की किसी कंपनी को हायर किया इंडिया के बिजनेस में कुछ टेक्निकल एडवाइस देने के लिए. किसी इंजीनियर्स को हायर किया, कंसल्टेंट्स को हायर किया और उन्हें फीस पे किया फॉर टेक्निकल सर्विसेज दैट दे गिव. फॉर एग्जाम्पल, साइरस पूनावाला को जानते हैं आप? हाँ या ना? साइरस पूनावाला. यस सर. हाँ, कौन है वो, बताइए बेटा. सर मैनेजिंग डायरेक्टर सेरम इंस्टीट्यूट. वेरी गुड. सीरम इंस्टीट्यूट के एमडी हैं. सो से SII is in Pune and Serum Institute tied up with a US company. Yes, sir. I think the founder of Serum Institute. Yeah. So he tied up with a foreign company and he got rights of using the process for making a vaccine. So for every vaccine that is manufactured in India, SII will have to pay royalty to that company. So royalty is paid to them abroad, but it's for a business in India. So again, since the business is in India, it is Indian income. And if it is Indian income, it is taxable to all categories of employee. All categories of persons. समझा? यस सर. Okay. One more thing. यहाँ पे if I change to Anmol, if I change from Anmol to Government of India, in both my example, इसको निकाल लेते हैं.
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो किया मनी, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फीस पे किया फॉर टेक्निकल सर्विस, या रॉयल्टी पे किया, then the income is treated as Indian income irrespective of India or out of India. So say example, इंडिया ने अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बनाने के लिए किसी आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया और उसे फीस पे किया, या किसी कंसल्टेंट को अपॉइंट किया, उसे फीस पे किया। तो ये प्रोजेक्ट है अफगानिस्तान में, एंड इफ यू नो और इवन इफ यू डोंट नो, India has recently constructed a parliament building in Afghanistan, which was inaugurated by Modi ji some years back, okay? I think 5-6 years back. So if government of India is paying to the company any royalty or fees for technical services, then that is treated as Indian income irrespective of whether the project or a business was in India or outside India. So for government, everything is Indian income if they are paying. But for others, it is Indian income only if the business is in India. Are you clear, or you want me to repeat that again? No, sir, we understand. You understood, okay? तो आप वो जो deemed to accrue के लिए, have you left some space there? Yes, sir. Add these 4, 5, 6, 7, 8 over there. Copy this, and once it is done, do let me know. लिख के हो जाए तो बताओ बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। हुआ कि नहीं हुआ बेटा? 5, 6, 7, 8 Yes, sir. तो आप बोल नहीं रहे हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। 13 तक हमने कर लिया था बेटा, ये वाला क्वेश्चन। Yes, निशु sir.
या तो क्वेश्चन 14 करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. I will share the whole file with you, though I keep on forgetting. I'll do that today. Question 14. So X is R and NOR. आप अभी लिखिएगा नहीं, I'll give you time to write down. अभी सिर्फ ध्यान दीजिए. X is R and NOR, and these are the details of income. Capital gain on a sale of house situated in Pune. Sale consideration received in Nepal. So because the property is in India, it will be treated as Indian income. And if it is Indian income, then it is taxable to everybody. So it is taxable to this guy 40,000 because property is in India. Next, salary received in Sri Lanka for rendering services in Tamil Nadu. Tamil Nadu India में है and services India में render कर रहे हैं, तो ये Indian income है, and because it is Indian income, it will be taxable to him. Interest received from Government of India. अच्छा. It is paid to him in Sri Lanka. Money is utilized by the Government of India outside India. Next. Sir, Indian income. Correct. ये इंडियन इनकम होगा बिकॉज पेयर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. तो पैसे कहीं पे भी यूज किए जाए, ये इंडियन इनकम है और इंडिया में टैक्स होगा. नेक्स्ट, रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम ALLC. LLC का फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन. जैसे हम इंडिया में LTD लिखते हैं, जैसे अब्रॉड में LLC या INC यूज किया जाता है. सो रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम ALLC मतलब ये जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स, उन्होंने इस कंपनी को कुछ राइट्स दिए होंगे, जिसके बदले में ALLC ने इनको रॉयल्टी पे किया. ALLC is a foreign company which is non-resident in India. Money is received outside India and royalty is paid for a business situated outside India. तो ये इंडियन इनकम की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि फीस जो दिया है वो फॉर अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया दिया गया है, तो ये यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा. ये रॉयल्टी केस में हम लिख देते हैं NT, नॉट टैक्सेबल, एंड देन द टोटल 1,50,000. ठीक है. तो इसको if anybody wants to ask any doubt, they are free to do that. Please ask any doubt that you have. डाउट नहीं है तो हो जाएगा तो मुझे बताइए, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे.
Let me know once done, beta. Yes, sir, done. सबका हो गया, बाकी सबका? Yes, sir. Okay, great. तो ये था हमारा चैप्टर ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। स्क्रीन पे क्या शेयर्ड है बेटा? अभी क्या दिख रहा है आपको? So calendar. Calendar. अरे बाप। Yes. Give me a minute to do some changes here and then I will share again. एक मिनट के लिए। तो कुमार सर ने There must 76 apps to be uploaded. So? 76 apps upload કરવા માટે. अपडेट करो। 5 નાખું છું હમણાં અપડેટ કરવા પછી બાકીના assignment. I'm replying. We can order the corona. 18,000 rupees હતા corona. બરાબર છે હું બીજી એપ આવીને ઇન્સ્ટોલ કરવા નાખું દવા ખાઈ લઉં શરીર ચાલે માં. हाँ बेटा, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम सीखने का। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। Now this is actually no connection directly or indirectly with what we have learned so far. So if students have joined later on, this part they will surely be able to understand, even if they were not there in the earlier class. So for them, this is the beginning. I will repeat. There are few students who have joined late. So even if they have not understood, even if they have not attended the earlier lectures, it doesn't matter. आज आपको समझ आ जाएगा, आज जो भी करेंगे वो, क्योंकि ये सबके लिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और किसी को कुछ भी नहीं समझा तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस, ठीक है? तो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। कोई भी असेसी इनकम अर्न करता है तो उसे 5 हेड में डिवाइड करना पड़ता है। 5 हेड के नाम क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, and income from other sources. These are the 5 heads of income. I will repeat again. Whatever income an assessee earns, he has to first find out that this income will be taxed in which head.
every head of income has their own procedure, steps to find out income taxable in that head. हर हेड के सेक्शंस प्रोविजंस अलग अलग हैं, इसीलिए इनकम को कौन से हेड में टैक्सेबल होगा ये डिसाइड करना सबसे पहला काम है. सो हम अभी पहला हेड ऑफ इनकम सीखने जा रहे हैं, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम, and again useful for all of you in your life, because some of you may do a job. If somebody does business, then income from business और profession वाला head उनके लिए काम में होगा आएगा. हम सीखने स्टार्ट कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी इनकम होगी जो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगी. What will be the kind of income that will be taxable under the head income from salary? तो ये हाँ जी, somebody saying something? No. ये जो हेड ऑफ इनकम है, ये जो मैंने बताया कि कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा, वो डिसाइड करने के जो सेक्शन होते हैं वो सेक्शन को बोलते हैं बेसिस ऑफ चार्ज. और सैलरी का सेक्शन है सेक्शन 15. बेसिस ऑफ चार्ज मतलब फॉर एनी इनकम टू बी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी, the condition laid down in section 15 is very important for us to find out. ये सेक्शन ये डिसाइड करता है कि ये जो इनकम अर्न हो रहा है वो सैलरी में टैक्सेबल होगा या किसी और हेड में टैक्सेबल होगा, पर सैलरी में तो नहीं होगा. समझा? Yes, sir. ओके. तो क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है दैट द रेसिपिएंट, जिसको पैसे मिल रहे हैं, इधर लिखा हुआ है, व्हाई एम आई राइटिंग अगेन, इनकम इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी इफ रेसिपिएंट इज एम्प्लॉय ऑफ द पेयर. इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी if recipient, में कॉपी ऊपर ताकि आपको नीचे का ना दिखाई दे. हाँ, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी इफ रेसिपिएंट इज एम्प्लॉई ऑफ द पेयर. सो एक एग्जाम्पल से मैं पूछता हूं आपसे. I am a visiting faculty with Mithibai College. I am not in the sense an employee of the college. I come to deliver lectures on the day my lectures are scheduled. So yesterday I did not have any lecture in Mithibai College, so I was not there. अभी तो ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, पर जब ऑफलाइन हो जाएगा तब मैं ट्यूसडेज को कॉलेज में आऊंगा ही नहीं.
So I am going to get remuneration from college for delivering lectures, but वो जो मुझे इनकम मिल रहा है वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है। मैं यानी कि रेसिपिएंट मिठीबाई कॉलेज का एम्प्लॉय नहीं हूं, तो मुझे जो इनकम मिल रहा है वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकता है, वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकता है। तो कहाँ टैक्सेबल होगा सर? तो वो Profession. हाँ जी, प्रोफेशन में हो सकता है या अदर सोर्सेज में भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो अभी हम उसका आंसर नहीं देंगे, पर सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा, ये आंसर दे देंगे। सो ये सबसे पहला कंडीशन कि कोई भी इनकम को ये हेड में टैक्सेबल करने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, दैट द पर्सन हु इज रिसीविंग मनी शुड बी एम्प्लॉय ऑफ द पेयर। नाउ दैट टेक्स अस टू वन एग्जांपल। से एग्जांपल, मेसर्स PQR इज अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें मिस्टर P इज वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव। वो बहुत काम देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज हैंडल्ड बाय हिम। Q&R are of course there, but they don't look after everything of the business. Therefore, the firm has decided to give salary to Mr. P. वो थोड़ा ज्यादा काम करते हैं, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म ने डिसाइड किया है मिस्टर P को सैलरी पे करने का। अब सवाल ये है कि मिस्टर P को जो सैलरी मिला है, क्या वो क्या वो सैलरी इनकम है या नहीं? I'll repeat the question again. Mrs. PQR is a partnership firm where P is a partner. P does majority of the work, so the firm has given him salary to Mr. P. The question I'm asking is कि P को जो सैलरी मिला है, क्या वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? होगा। ओके, एनीबडी एल्स? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। ओके, नहीं तो होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा वाले मेजॉरिटी में है। तो जिन्होंने बताया होगा वो जरा बताएं, व्हाई डू यू थिंक सो? So because it is salary, he is in a way employed by the firm. ओके, सो द आंसर इज नहीं होगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? हाँ, तो अभी तो पूछ रहा है तो मैं बता रहा हूं that is he the employee in technical term or he is a partner doing business on his own with two of his partners? क्या मेसर्स PQR ने उसे नौकरी पे रखा है कि आजा तू काम कर हमारे लिए? No sir. नहीं ना, वो तो वन ऑफ द ओनर है, एंड इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट बिटवीन देम कि भाई ये भाई साहब ज्यादा काम करते हैं हम दोनों से, तो इसको थोड़ा ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, प्रॉफिट शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा, पर इसको सैलरी भी देना चाहिए। सो मिस्टर P does not fulfill this condition. He is not employee of the firm. He is one of the partner. So though the word here used is salary, ये सैलरी लिखने से वो सैलरी का कैरेक्टर नहीं ले लेता है, ठीक है, उसको सैलरी दे रहे हैं, बट इनकम टैक्स एक्ट वांट्स सच सैलरी which is received by employee to be taxed under the head salary. तो मिस्टर P को जो सैलरी मिलेगा वो इनकम टैक्स एक्ट में इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल होता है,
इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल होता है क्योंकि ये मिस्टर पी का बिजनेस है. So salary received by P will not be taxed under salary. Next example. MPs and MLAs are they public servant? Yes, no. MPs and Yes, sir. MLAs. Yes. Yes. So actually we select them, right? हम उनको select करते हैं and then it is like we are instructing government of India that this guy will do our work. हमारे लिए काम करेगा ये बंदा, हमारा सर्वेंट है और आप जो टैक्स कलेक्ट करते हो हमसे, use that money to give him salary. So the question is, MP and MLA, are they government employee? Hello? Yes बोलना है या Yes, no sir. बोलना है? Yes, sir, they are. नहीं बेटा, आपने सुना नहीं ध्यान से मैंने क्या बोला. अच्छा, उल्टा करते हैं. अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या गवर्नमेंट ने उन्हें नौकरी पे रखा है? No, Public sir. employees, sir. है ना, पब्लिक एम्प्लॉय है, हमने काम पे रखा है उनको और हमने गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया है इनको पे करने के लिए. तो पेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बट एम्प्लॉयर हम हैं. तो ये फुलफिल नहीं हो रहा है कि जो लेने वाला है वो देने वाले का एम्प्लॉय होना चाहिए. अगेन ये थोड़ी टेक्निकल लीगल बातें हैं and because this condition is not fulfilled in this case, though the word used is salary, but salary received by MPs and MLAs will not be taxed under the head salary. It will be taxed under IFOS because MP and MLA are not government employee. गवर्नमेंट नौकरी नहीं करते हैं, वो हमारी नौकरी करते हैं. आगे नेक्स्ट एग्जांपल. Are the directors of the company employee of the company? Say yes or no. No, sir. No. Anybody else? You should participate in the discussion. Even if you're wrong, doesn't matter. You'll be still alive. But No, interacting, yeah, interacting is very important. No, sir. No, okay. Yes. एक yes, तीन no. Anybody for yes? Yes, sir. sir. Yes. Okay, good. Yes, sir. So the answer is we don't know. The answer is we don't know. एक एग्जांपल देते हैं. तो से मैनेजिंग डायरेक्टर. मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब क्या? He is a managing director. He manages everything of the company. So
must be engaged in day-to-day activities of the company ongoingly, dedicated fully to this work. And have you heard of this term? Have you heard of this term? Yes, sir. Executive director, independent director. Say, example, Mr. Dhoni. अच्छा, who is the owner of Chennai Super Kings? CSK का ओनर कौन है? Any IPL lover? तो सलमान खान. छे, no, not that I know, no. Public domain में तो ये बात नहीं है. CSK का ओनर है एक कंपनी कॉल्ड इंडिया सीमेंट. इंडिया सीमेंट नाम की कंपनी CSK की ओनर है. और ये इंडिया सीमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक है हमारे प्रिय मिस्टर धोनी. He is one of the director of the company. Now he can be an executive director. He will not be involved in the day-to-day functioning. Probably anything related to sports or cricket, he will attend that meeting. But otherwise, सीमेंट कैसे बनाने का उसमें धोनी जी अपनी एडवाइस नहीं देंगे. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. So the original question that I asked was, are the directors employee of the company? Few students said yes, few students said no, and I said we don't know, which means it depends on the contractual relationship between the two. सिर्फ डायरेक्टर वर्ड से पता नहीं चलेगा कि वो एम्प्लॉई हैं या नहीं है. एक और बात, अगर ऐसे बोल दिया डायरेक्टर है तो सिर्फ डायरेक्टर है तो क्या है भाई, एम्प्लॉय है या नहीं पता नहीं चलता है, बताना पड़ेगा. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. So a director, whether he is an employee or not, depends on the agreement between them, and accordingly it will be taxed. अगर वो एम्प्लॉय हैं तो सैलरी में टैक्स होगा, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो अदर सोर्स में टैक्स होगा. समझा या नहीं समझा? सर इन जनरल Yes, sir. एमडीज जो होते हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं या नहीं? एमडीज होते हैं, इसीलिए मैंने दो अलग अलग एग्जाम्पल दिए. सो इन माय एग्जाम्पल एमडी जो होते हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो एम्प्लॉय नहीं होते हैं. ठीक है? ओके सर. यस सर. या तो ये आपको लिखना है अभी, ये बेसिस ऑफ चार्ज. तीनों एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिए वो आप लिख लीजिए जरा, और लिख के हो जाए तो बताओ, आप बोलते ही नहीं हो. आई एम ऑन म्यूट, लिख के हो जाए तो बताओ.
Sir, बोलो बोलो बेटा. और जो थर्ड पॉइंट है सैलरी रिसीव्ड वाला, सर वो फ्रॉम डायरेक्टर होगा कि बाय डायरेक्टर होगा? For salary received by director. यस सर, डन। Okay, good. अभी हमारा जो प्रीवियस ईयर है, एक मिनट, हमारा जो प्रीवियस ईयर है, दैट मीन्स 21-22, which is also called as income year. इनकम ईयर मतलब कि इस साल में कमाई गई इनकम को कैलकुलेट करना है हमें. So the year begins from 1st April 2021 and ends next 31st March 2022. Now, Income Tax Act at times plays a game with all of us which says heads I win, tails you lose. ऐसा गेम खेलती है बहुत जगह पे. Heads I win, tails you lose, which means in any scenario, Income Tax Act won't lose. They will only win. So to understand that, let me discuss. ये सेक्शन में ऐसा लिखा है that salary is taxable on the basis of due or received whichever is earlier. ऐसा लिखा है, due or received whichever is earlier. तो एक एग्जांपल लेते हैं. Say Mr. Sunil is working in an organization और उनको हर 7th of the month लास्ट मंथ का सैलरी मिलता है. ऐसे नॉर्मल रूल है उनके कंपनी में. सो मिस्टर सुनील जो है वो 25 मार्च 2022 को बॉस के पास गए. He was in need of money. He had been working this organization since last 4-5 years. So the organization were very happy with the work of Sunil. तो सुनील भाई साहब 25 मार्च को अपने बॉस के पास गए और बॉस को कहा कीप योरसेल्फ म्यूट बेटा. कौन है अनम्यूट? लक्ष्मी, आई थिंक आप अनम्यूट हो गए. हाँ यस सर, सॉरी. चलो फिर मैं अटेंडेंस ले लूं एक बार. So he goes to his boss on 25th of March and requests him that, sir, I know 7th is the date of receiving salary, but I have a special request. You know how honhar I am, how hardworking I am. So this is the time for the company to give it back to me. बॉस बोलते हैं बोल तेरे को क्या चाहिए बोल. सुनील बोलता है नहीं सर कुछ नहीं, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, मुझे आप मार्च का सैलरी प्लस अप्रैल का सैलरी अभी दे दीजिए, एडवांस में दे दीजिए सैलरी. देन आई विल वर्क फॉर द होल मंथ
of April, but don't give me salary then. तो ये लोन आप नहीं दे रहे हैं, आप मुझे अप्रैल का पगार मार्च में दे रहे हैं. So now the question is, will that salary of April become taxable in this year? No, sir. Our previous year is yes बोल दिया, 1:1 हो गया है. बस और कोई नहीं आंसर. No, sir. No, sir. नो. अब नो किस लिए बोल रहे हैं? It will not become taxable. Yes, sir, it will. Okay. So the answer is it will become taxable. पूछो क्यों सर? क्यों? क्यों? Why? क्यों सर? क्यों? अब आपने पूछा इसलिए जवाब दे रहा हूं मैं कि इधर ही तो लिखा है ऊपर, ड्यू और रिसीव्ड whichever is earlier. So ये जो अप्रैल का सैलरी है वो रिसीव कब हुआ? Which year it is received? It is received in the year 21-22. So the point says due or received whichever is earlier. So if it is received on 25th of March, which falls in previous year 21-22, it will be taxable in this year. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर देते हैं. इधर आइए. अपॉइंटमेंट लेटर में जो कंडीशंस लिखी जाती हैं उसमें से कुछ एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है. देखो जरा पढ़ लो प्लीज. These are various terminologies written in the appointment letter. Yes, sir. So the first one says salary of a month is due on last day but will be paid on 7th day. तो अब लास्ट डे को सैलरी मांगने जाओगे तो बोलेंगे नहीं सर, हमें पता है आपने काम किया है पूरे महीने, पर सैलरी का पेमेंट तो 7th को होगा. सेकेंड केस में ऐसा लिखा है अपॉइंटमेंट लेटर में that salary is due on 7th month, 7th of the next month, and it will be paid on the same day. और थर्ड में इट इज लिखा गया है सैलरी ऑफ अ मंथ इज ड्यू एंड पेड ऑन. ये दोनों सेम हो गए नहीं ना? हाँ, ये लास्ट डे नहीं ऑफ द sir, मंथ ऊपर है. वाले. हाँ, लास्ट डे ऑफ द मंथ है और ये 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है. तो अब यहां तो बोला गया है ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर. तो मतलब 21-22 में टैक्सेबल होगा या नहीं ये डिपेंड करता है कंडीशन पे. इधर क्या लिखा गया है? तो आप एग्जांपल लेते हैं. ये क्वेश्चन है ऐसा, सैलरी अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है, क्या लिखा है? सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ एंड विल बी पेड ऑन 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. तो ये एडवांस लेने गया था, उसकी बात भूल जाना, वो एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया. तो अभी मार्च महीने का सैलरी ड्यू कब होता है? 7th 31st April. को.
31st March. 7th April जिन्होंने बोला इधर पढ़ो ध्यान से. 31st. So due on 31st of March 22. I'll repeat. The condition in the appointment letter is salary of a month is due on last day of the month, but it will be paid on 7th of the next month. ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर में साफ साफ लिखा है. तो ड्यू कब हुआ? 31st मार्च को. पेड कब हुआ? पेड हुआ 7th अप्रैल को. 7th April. Now this date falls in previous year 21-22, whereas this date falls in 22-23. So the question is, मार्च महीने का जो सैलरी है वो कब टैक्सेबल होगा? 21-22 में या 22-23 में? 21-22. Very good. Everybody same answer. Because of this provision. So now you understand why am I saying heads I win, tails you lose. Let me explain. मार्च महीने का सैलरी मिला नहीं है आपको, बट इनकम टैक्स एक्ट वाला उसको जोड़ देता है. सेकेंड एग्जाम्पल, आपको अप्रैल 22 का यानी नेक्स्ट ईयर का सैलरी जो अभी ड्यू भी नहीं हुआ है वो आपको इसी साल मिल गया, तो इसी साल टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन रिसिप्ट बेसिस. समझ में आया? हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज. Yes, sir. वेरी गुड. चलिए तो Excuse me, sir. बोलो बेटा. सर जो फर्स्ट केस था उसमें फिर जब एडवांस मिल गया अप्रैल मंथ का तो देन नेक्स्ट ईयर में थोड़ी काउंट होगा वो. नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, श्योरली नहीं होगा. एक इनकम एक ही बार टैक्स होता है. तो अगर आपने बॉस से अप्रैल का सैलरी अभी ले लिया है तो इस साल वो टैक्स हो गया है, तो नेक्स्ट ईयर दोबारा वो टैक्सेबल नहीं होगा बेटा. ओके सर. ओके गुड. अब आते हैं इधर, कुछ एग्जांपल्स हैं इसी पॉइंट को और क्लैरिफाई करने के लिए. ये तो आंसर आ गया भाई, आंसर तो छुपाना पड़ेगा आपसे. आपने देख लिया तो बहुत गलत बात है. ये क्वेश्चन है. मिस्टर अजीत जॉइंट क्रिएटिव कनेक्ट नाम की कंपनी को ज्वाइन किया उन्होंने. 1 अप्रैल 18 से वो वहां पे काम कर रहे हैं. 1 अप्रैल 18 से वो वहां पे काम कर रहे हैं. पर सैलरी स्केल ऐसा उनके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है, ऐसे ही वर्डिंग्स लिखे हैं 12 to 20 फिर 5 और फिर 35. तो आप मुझे बताइए कि प्रीवियस ईयर 21-22 में, अच्छा आई एम सॉरी, पहले आप तो ये बताइए कि ये जो लिखा है ऐसा उसका क्या मतलब लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक इट प्रोबेबली बी? एकदम वाइल्ड गेस मारने का, बिंदास. किसका? The salary per month. कितना है सैलरी पर मंथ? इधर तो बहुत सारे फिगर्स हैं, तो सैलरी पर मंथ कितना है? बिंदास वाइल्ड गेस करो रे बाबा. डोंट वरी इफ इट्स रॉन्ग. Sir, she meant Salary to in different say installments. ये अलग लिखी है. सॉरी, जो द बॉय हु वाज सेइंग समथिंग. Sir, I was saying that she meant to say is कि हर महीने की लिखी है कि 12,000 for April, 2,000 for
me, then हाँ सर 20,000 would. Okay, no, it doesn't mean that, beta. And are you trying to say कि अप्रैल में 12,000 मिलेगा और मई में 2,000 मिलेगा? Anybody else? सैलरी Wild 5 guess. इंस्टॉलमेंट्स में हाँ. मिल रही है। सैलरी इंस्टॉलमेंट। ओके, नहीं तो मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जब अजीत ने जॉब ज्वाइन किया, so the first year of his job, his salary will be 12,000. नौकरी के पहले साल में उनका पगार 12,000 रुपया होगा। फिर जब उनका एक साल खत्म हो जाता है जॉब का, तो नेक्स्ट ईयर उनका पगार 2,000 रुपए से बढ़ जाएगा। So that 2,000 written there is the increment in the salary. 12,000 में 2,000 बढ़ जाएगा। So second year of his job, he will get 14,000 as salary. Third year, 16,000. Fourth year, 18,000. Next year, 20,000. So once it reaches 20,000, then it will increase by 5,000 per month. तो पहले 2,000 का प्रमोशन मिलेगा, 20,000 एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। 20,000 के बाद अगर बढ़ना है तो 5,000 रुपया सैलरी बढ़ जाएगा। तो 20 का 25, 25 का 30, 30 का 35। Anybody any doubt in the question now? नो सर No. So what we need to find out is basic salary of 21, 22. Luckily here also, here he has joined on 1st April, though in the questions he may join in between a year. See, आज join किया भाई साहब ने, ऐसा भी हो सकता है, तो हम बाद में लेंगे वो एग्जाम्पल। अभी फिलहाल 1st April 18 से लेकर 31st March 19 में उनका पगार 12,000 होगा। एक साल खत्म हो गया तो 1920 में उनका सैलरी 14,000 होगा। 2021 में उनका सैलरी 16,000 होगा एंड 21-22 में उनका सैलरी 18,000 होगा। तो 21-22 में उनका सैलरी कितना हुआ? 18,000 पर मंथ। So taxable basic salary for 21-22 will be 18,000 into 12. Anybody any doubt? नो सर No, sir. ये क्वेश्चन और उसका ये आंसर आप लिख लो, टाइप कर लो, आपके नोटबुक पर टाइप कर दो एंड लिख के हो जाए तो बताना। Yes, Archie, you want to say something? नो सर Okay, once you are done, let me know, beta.
Yes, sir, done. Okay. So in the first case, the taxable basic salary will be 2,16,000. Good. Now the second question. Mr. Sujit joined Creative Connect from 1st April 18. Let me copy this here so that you can't see the solution. Mr. Sujit joined blah 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 blah. Salary of a month is due and paid on 7th of the next month. ऐसा क्वेश्चन में दिया है ड्यू एंड पेड ऑन 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो क्या होगा? आप बताइए क्या आंसर होगा? So it will not be included. सेम आंसर सेम आंसर आएगा? आंसर बताइए। ड्यू तो हो जाएगी। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो बेटा, जो टर्म है वो पढ़ो, क्या लिखा है। तो 16,000 पे होगा क्या? आई डोंट नो बेटा, मैं आंसर अभी नहीं दूंगा, आपको एक्सप्लोर करना है, पहले आप सोचिए। So 1,98,000. Okay. Sir, it will be calculated for 11 months only. Okay. Sir, 98,000. Okay. 1,98,000. Okay. 1,98,000 प्लस उसके प्रीवियस ईयर का जो हमें इस ईयर के अप्रैल में मिलेगा 16,000, वो भी ऐड होगा 1,98,000। Very good. So the answer will be 2,04,000. Yes sir. नहीं, good. 2 lakh नहीं, 2,14,000. ओके, देखते हैं। तो इन अ नॉर्मल सिनेरियो, वेयर सैलरी इज ड्यू ऑन द सेम मंथ, हमने बोला 2,16,000 आंसर आएगा, नॉर्मल सिनेरियो। बट हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज सेड सैलरी ऑफ अ मंथ इज ड्यू एंड पेड ऑन 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सो 7th का सैलरी उसका ड्यू नहीं हुआ है, ड्यू एंड रिसीव्ड नेक्स्ट मंथ में ही, नेक्स्ट ईयर में होगा। आई एम सॉरी, 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ में होगा। सो इन दैट केस पहले मैं क्या करता हूं, मैं सोल्यूशन पे लेके जाता हूं आपको। यहां तक तो ठीक है गाड़ी, 2,16,000 तक जो अभी आया था। अब इसमें से मार्च 22 का जो सैलरी है, मार्च 22 का सैलरी 18,000 है, तो 18,000 रुपीज इस साल में यानी कि 21-22 में नाइदर रिसीव्ड नॉर ड्यू हो गया, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज टैक्स करने के लिए दो में से एक तो होना चाहिए ना। तो मार्च 22 का सैलरी ड्यू भी नहीं हुआ है और रिसीव भी नहीं हुआ है, तो वो 18,000 माइनस करेंगे। अब जैसे इस साल का आप माइनस करके नेक्स्ट ईयर लेके जा रहे हो, वैसे ही पिछले साल का लास्ट महीना इस साल टैक्सेबल होगा ना भाई। वन मोर टाइम, लेट मी एक्सप्लेन। सो यू आर पेइंग मार्च 22 का सैलरी इन अप्रैल
प्लस मार्च 22 का सैलरी ड्यू भी नहीं हो रहा है, which means मार्च 22 का सैलरी 21-22 में टैक्स नहीं हो सकता है. It is neither due nor received. तो वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 22-23 में टैक्स होगा, तो वो 18,000 निकाल दिया. ये भाई साहब तो लास्ट ईयर भी इसी कंपनी में थे, तो लास्ट ईयर का मार्च इस साल में टैक्सेबल होगा, तो आपका टोटल टैक्सेबल अमाउंट 2,14,000 होगा. जिन्होंने ये आंसर दिया था उनके लिए वेरी गुड. किसी को कुछ पूछना है ये क्वेश्चन में तो पूछ सकता है, और अगर नहीं पूछना है तो इतना कॉपी कर लीजिए. सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए ना. थैंक यू सर. हो जाए तो बताइए बेटा. डन. नो सर, 1 minute. ओके. Yes sir, done. Okay. Now the third part. Here I have changed the date of joining. क्वेश्चन वही रखा है सुजीत का जो है वो, पर मैंने जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो चेंज कर दिया है. अनिल joined Creative Connect on 1st October 18. 1st October 18 को ज्वाइन किया है. अभी तक के दोनों सम में joining date was 1st April, so it is like previous year only. Here it is 1st October, rest all remains same. I will give you 2 minutes to solve on your own, then we will discuss the solution. Please try on your own and shout out the answer once you get it, okay?
Nobody? Sir, I have a question. हर्षल क्या बोला बेटा, वापस बोलिए. Sir, I have a question. हाँ पूछो. Sir, his salary will increase only after 12 months of him joining, or it will be according to the financial year? Very good. So it will be 12 months of his joining beta. So 1,92,000. Okay, 192. I don't remember the answer, but I heard you. 192. Mohak, is your query answered? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. You're welcome. $2,14,000. Okay. So 192 and 2,14 ये दो आंसर आए हैं. Anybody else? Say 2,02,000. 2,02,000. ठीक है, चलो चेक करते हैं आंसर क्या है. 2 lakh. हाँ बोलो. 2 lakh. एग्जैक्ट 2 लाख. ओके, चलिए देखते हैं. तो 1 अक्टूबर 18 से 30th September will be 1 year, and in that year his salary is 12. Then October 19 to September 20, 14. Then 16, then 18. But here it is October to September. Now, as Mohak said, हमारा प्रीवियस ईयर तो अप्रैल से मार्च होता है बाबा. ये तो गड़बड़ हो गया. तो कोई नहीं, हमने क्या किया, हमने इधर अप्रैल 21 में पगार कितना होगा, तो अप्रैल 21 लाइज हियर. अप्रैल 21 इज इन दिस ईयर, दिस पीरियड. सो अप्रैल 21 में उनका पगार है 16,000 रुपए. अप्रैल से सितंबर तक उनका पगार 16,000 होगा. फिर 1 अक्टूबर से उनका पगार बढ़ जाएगा. 1 अक्टूबर से मार्च 22 तक उनका पगार होगा 18,000 per month. So under a normal scenario, April to September 96, October to March 1,08,000 और total 2,04,000 taxable होगा under a normal scenario. नॉर्मल मतलब जब ड्यू सेम मंथ में हो रहा है तब. अब यहाँ पे बोला गया है ड्यू ऑन 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ऐसे बोला गया है. तो फिर वही लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा कि मार्च 22 का सैलरी माइनस करोगे और मार्च 21 का सैलरी ऐड करोगे. तो फाइनल आंसर इज 2,02,000. समझा? हाँ बोलो, ना बोलो. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. तो लिख लो बेटा, और हो जाएगा तो बताओ.
हो गया? No, sir. No, sir. ओके ओके. Done, sir. ओके, किसी का बाकी है? नहीं है. ओके ग्रेट. ये हमने एक पार्ट सीखा सैलरी का, इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसमें हमने ये पॉइंट को क्लैरिफाई किया. क्या पॉइंट है? दैट सैलरी इज taxable on due or receipt basis whichever is earlier, जो पहले होता है. अगर ड्यू हुआ है, मिला नहीं है तो टैक्सेबल होगा. अगर मिल गया है, ड्यू नहीं हुआ तो वो भी टैक्सेबल होगा. ठीक है? गिव मी अ मिनट. I'll just join back in a minute, please. Thank you.
ओके, आई एम बैक। दो दोस्त लोग हैं, एक दोस्त का नाम है नौकरी वाला और दूसरे दोस्त का नाम है बिजनेस वाला। एक दोस्त है नौकरी वाला, दूसरा दोस्त है बिजनेस वाला। ये दोस्त है ना नौकरी वाला जो जॉब करता है, he always has a feeling of jealousy towards this business wala. Apart from other reasons of jealousy, one of the reason is that this fellow nokri wala, even if he wants to hide his income from income tax department, he can't do that. नौकरी वाला चाहता है कि वो टैक्स में कुछ चोरी करे, कम टैक्स पे करे, ब्लैक इनकम जनरेट करे। तो ऐसा अगर वो चाहे तो भी वो कर नहीं सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट ने एम्प्लॉयर को बोला है, एम्प्लॉयर को, कि आप इसका इनकम कैलकुलेट करिए। आपको तो पता ही है इसका इनकम क्या है। सो यू कैलकुलेट हिज इनकम and you calculate the tax and then you pay that tax to us in the form of TDS, tax deducted at source। मतलब नौकरी वाला को जो इनकम मिल रहा है वो इनकम पे तो टैक्स उसने ऑलरेडी कट कर दिया गया है बाय एम्प्लॉयर। तो one of the reason of jealousy is that even if they want to do some tax chori, they can't do it. And they tell business wala ki tere ko acha hai, you can do whatever chori you want to do. So I'm not advocating something, but I am just saying. So ऐसा एकदम नहीं है, ये नौकरी वाला का जो jealousy है ना थोड़ा सा unfounded है। Why I will explain. तो दूसरा एग्जाम्पल अब लेते हैं। से एक है मिस्टर, अभी दो लड़कियों का नाम लेते हैं, रितु, मिस रितु, मिस्टर क्या, मिस रितु, और एक है मिस कृषि। ये दो लोग जॉब कर रहे हैं, रितु और कृषि दोनों। रितु के बॉस ने उसको कहा है कि आपका सैलरी जो है वो एग्जाम्पल 40,000 पर मंथ है, 40,000 पर मंथ, ऐसा एक कंसोलिडेटेड फिगर बता दिया है। कंसोलिडेटेड सैलरी बता दिया है 40,000 पर मंथ। पर कृषि के बॉस ने, कृषि का बॉस भी पे तो 40,000 ही करना चाहता है, पर वो 40,000 को उसने अलग अलग नाम दिए हैं। एक बोला है बेसिक सैलरी, एग्जाम्पल है फिगर्स 25,000। फिर बोला है हम आपके लिए प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट करेंगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। All figures are example to explain the point. फिर हम आपको कुछ allowances देंगे, allowances, some allowance. I will explain this later in detail, but right now just try to understand what point I am trying to make. 3,000 हम आपको allowance देंगे और फिर हम आपको बोनस भी देंगे, बोनस 2,000 रुपए। So this is how we will pay you 40,000. I'm sorry, 35 हुआ ये? ओए, sorry. तो ये 8,000. So both employers are paying the same salary, 40,000 and 40,000. But this employer, Krishi's employer, has bifurcated that 40 into 4 different elements. So it may happen that for Krishi, taxable salary
taxable salary will be less than 40,000. It may happen. How and when you will understand. But taxable salary 40,000 से भी कम आ गए. Example ले रहा हूँ. ये allowances ऐसे allowance हैं जो example income tax में exempt है. exempt है. मतलब ये वाले अलाउंसेस पे आपको टैक्स नहीं पे करना है, माफ किया जाओ. ये 5,000 रुपया पीएफ है, प्रोविडेंट फंड, ये भी माफ किया जाओ, इस पे टैक्स नहीं भरना आप. तो अगर ये दोनों माफ कर देते हैं तो टैक्सेबल सैलरी कितना हो गया बताइए कृषि का? 27,000. Very good, 27,000. So though both of them are getting same income 40-40, Ritu will pay tax only on Ritu will pay tax on entire 40, whereas Krishi will pay tax only on 27,000. तो कृषि का भी टैक्स बच रहा है बाबा, पैसे बच रहे हैं. The whole income of 40 is not taxable. There are lots of exemptions also available to कृषि. समझा या बाउंसर गया? समझा. Very good. So therefore, a very good employer, I will repeat, a very good employer will try to structure the figure of salary in such a way that it is beneficial to the employee and the taxable salary becomes less. मैं अगर एम्प्लॉय है तो मैं चाहूंगा एम्प्लॉय का टैक्स बच रहा है तो अच्छी बात है, तो मैं स्ट्रक्चर ऐसे उसको बना के दूंगा जिससे भले उसको पगार 40,000 मिल रहा है और वो टैक्स 40,000 पे नहीं पे करेगी, वो टैक्स लोअर फिगर पे पे करेगी. तो with this in mind, there are lots of exemptions in salary. So with this in mind, salary is divided into 5 different categories. One is called basic salary. Second is called allowances. Third, मैं नीचे लिख रहा हूँ. Third is called provident fund. Fourth is called special cash benefits. And fifth is called perquisites. इसको शॉर्ट में पर्क बोलते हैं. तो ये सैलरी 5 अलग अलग चीजों में बांटी गई है. बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, प्रोविडेंट फंड, स्पेशल कैश बेनिफिट एंड परक्विजिट्स. और हर एक में कुछ अलग है. सैलरी का चैप्टर काफी बड़ा है और काफी अलग अलग प्रोविजंस भी हैं उसमें, तो घबरा मत जाना. मैं कोशिश करता हूं हमेशा एकदम कॉन्सेप्ट से समझाने की, तो कभी भी कुछ नहीं समझा तो पूछना बिंदास, हाँ, डोंट वरी. बट देयर विल बी लॉट्स ऑफ सेक्शंस फॉर यू टू रिमेंबर. Now, if you have a question regarding exam, तो आपको जो सेक्शन सिखाए जाएंगे उसे याद रखना जरूरी नहीं है. मतलब सेक्शन नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, पर सेक्शन के अंदर का कंटेंट याद रखना जरूरी है. So I will not ask you this is an in which section. सेक्शन नंबर 10, 13A में क्या है वो पूछ सकते हैं आपको. 10, 13A हाउस रेंट अलाउंस एक्सप्लेन, ऐसा पूछूंगा. बट ये नहीं पूछूंगा हाउस रेंट अलाउंस का सेक्शन क्या है बोलो. तो सेक्शन याद रखने की मेहनत मत करिएगा. पर हैविंग सेड दैट, सेक्शन याद रह जाएंगे. By the time we will repeat so many times, it will get registered in your brain. So sections याद हो जाएंगे, पर याद रखने का जरूरत नहीं है.
तो हमने ये 5 कैटेगरीज में से बेसिक सीख लिया हमने, बेसिक सैलरी। अभी जो 3 एग्जाम्पल लिए वो बेसिक सैलरी के ही थे। अभी हम सीखने का शुरुआत कर रहे हैं अलाउंसेस। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, मैं आ जाता हूं अलाउंसेस पे। तो अभी आप ये नहीं सोचेंगे कि अलाउंसेस क्यों देते हैं, मैंने क्यों के पीछे का लॉजिक आपको बता दिया। दोनों एम्प्लॉयर पे तो करना चाहते हैं 40 ओनली, अपने जेब से 40,000 रुपए डालेंगे एम्प्लॉय की जेब में, पर उसको अलग अलग नाम से डालेंगे अगर, तो एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट हो सकता है। सो अलाउंसेस आर अ फिक्स्ड अमाउंट, जनरली एवरी मंथ। जनरली बोल रहा हूं, मतलब कंपलसरी नहीं है, जनरली एवरी मंथ, पेड irrespective of whether actual expense is incurred or not. एग्जाम्पल, मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस दिया गया, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया गया, फिगर एग्जाम्पल है 5,000 रुपया महीना। मुझे दिया गया ट्रैवलिंग अलाउंस 5,000 रुपया महीना। तो ये क्यों दे रहे हैं? बस दे रहे हैं भाई 5,000 रुपया महीना। मैं मेरी कार नहीं है, पर वो मुझे हेल्प कर देते हैं ड्रॉप करने में रोज डेली। तो मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस दिया गया है, पर मैं स्पेंड ही नहीं कर रहा हूं। तो अलाउंस का मतलब मैंने क्या बताया? इट इज पेड टू एन एम्प्लॉई irrespective of whether actual expense is incurred or not. तो एम्प्लॉयर 5,000 रुपए दे देगा एम्प्लॉय को, अब वो एम्प्लॉय स्पेंड करना चाहता है या नहीं वो एम्प्लॉय खुद देखेगा, ऐसा इसके पीछे लॉजिक है। तो अलाउंस का डेफिनेशन अभी बताया मैंने आपको, that allowances are a fixed amount, generally every month but not compulsory every month. There are few allowances which are probably once in a year. So we can say generally every year, paid irrespective of whether the actual expense is incurred or not. Anybody any doubt in what I have written? No, sir. No, sir. So ये जो allowances है उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक अलाउंस ऐसे हैं जो फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब इनकम टैक्स में इस यहाँ पे जो भी लिखेंगे इस वाले अलाउंस के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। ये वाले अलाउंस जो हम यहाँ लिखेंगे ये सारे के सारे फुल्ली टैक्सेबल है। सेकेंड वाले अलाउंसेस आएंगे अभी आप कुछ लिखना नहीं है, आपको एक चार्ट बना के दूंगा, वो चार्ट आप फिर बाद में लिखना, नॉट इन दिस लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर। दूसरे टाइप के कैटेगरी होंगे जो फुल्ली एग्जम्प्ट होंगे, फुल्ली एग्जम्प्ट, मतलब ये वाला जो अलाउंस है वो आपको अगर मिल रहा है तो उस पे आपको कुछ कुछ टैक्स पे नहीं करना है। तो ये दोनों एक्सट्रीम है,
और ये दोनों एक्सट्रीम के बीच में एक भाई साहब है जो है स्टैंडर्ड अमाउंट एग्जाम्प्ट, या फिर एग्जाम्प्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और उसमें दो कैटेगरी करूंगा एग्जाम्प्ट। लेट मी डू सम शोशा, एक मिनट दीजिए। तो ऐसा कुछ हम बनाने वाले थे, अभी बना दें। तो सम allowances are fully exempt, some allowances are partially exempt, and some allowances are fully taxable. तो अभी ये fully exempt में कौन कौन आता है? fully exempt में कौन कौन आता है? partially exempt में कौन आता है? और फुल्ली टैक्सेबल में कौन आता है, वो हमें सीखना है। तो पार्शियली एग्जम्प्ट मैं पहले सिखा रहा हूं आपको। पार्शियली एग्जम्प्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, please don't write children education allowance. Example, अभी उनको मिस करा देते हैं, मिसेस कृति कृषि। मिसेस कृषि has 2 children. One is in Mithibai College, studying FY BCom honors, and the other is in ICSE 10th standard. 2 बच्चे हैं और मिसेस कृषि जॉब कर रही हैं TCS में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनको TCS की तरफ से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, और वो अलाउंस उनको मिल रहा है 1000 रुपीज पर मंथ, बस 1000 पर मंथ। पर चाइल्ड मैंने नहीं बोला है, मैंने बोला है 1000 पर मंथ। यानी TCS कृषि को हर महीने 1000 रुपए देता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर उनको एक बच्चा है या 2 है या 3 है, TCS को कोई मतलब नहीं है उससे। अच्छा, कृषि मैडम उनके बच्चों को पढ़ा रही है या नहीं, वो भी TCS को मतलब नहीं है उससे। सो TCS बाय डिफॉल्ट 1000 रुपए दे देती है मिसेस कृषि को। हम जो स्टेटमेंट बनाएंगे ना, वो कुछ ऐसा होगा, इट विल बी लाइक स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी,
पर्टिकुलर्स का एक कॉलम होगा। सब लोग जिंदा हो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। और ऐसे दो कॉलम्स होंगे, एक इनर कॉलम होगा, एक आउटर कॉलम होगा। इधर ऊपर हम नाम लिखेंगे कृषि का। तो से यहाँ पे मैंने लिखा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इनर कॉलम में मैंने लिखा कि इस पूरे साल का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना है, बताइए पूरे साल का। 12,000. Very good. 12,000 is children education allowance for the whole year. Now, if we go to income tax, section 10, subsection 14. Again, as I told you, don't try to, think अरे इतने सेक्शन कैसे याद रहेंगे ना, जरूरी नहीं है, पर याद रह जाएंगे, डोंट वरी। तो ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय है जिसे ये वाला अलाउंस मिला है तो हम उसे एग्जम्पशन देने के लिए तैयार हैं, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 कि बच्चे स्कूल या कॉलेज में जा रहे होने चाहिए। सो अ चाइल्ड शुड बी स्टडीइंग इन अ स्कूल और अ कॉलेज। नाउ whether they are actually studying or not, income tax act can't check, but what they mean is कि एडमिशन लिया है, बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया है, पढ़ रहे हैं या नहीं वो इनकम टैक्स एक्ट चेक नहीं कर सकते। तो पहला कंडीशन कि they must be studying somewhere in a school or a college. Okay, study. अगर एग्जाम्पल उनका बच्चा 2 साल का है तो भाई 2 साल के बच्चों को हम ये सेक्शन में एग्जाम्पशन नहीं देंगे, क्योंकि वो स्कूल या कॉलेज में जाना चाहिए। किंडरगार्टन नहीं अलाउड होता है, केजी नॉट अलाउड, प्ले ग्रुप नॉट अलाउड, स्कूल और कॉलेज। तो ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन उन्होंने बोला है कि हम एग्जम्पशन देंगे स्टैंडर्ड अमाउंट 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ये हमारी दूसरी कंडीशन है कि जो बच्चा स्कूल में जा रहा है उसे हम एग्जम्पशन देंगे 100 रुपीज, माय गॉड, पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। सो इन आवर एग्जाम्पल एग्जम्पशन कितना मिलेगा? सो लेस एग्जम्पशन विच सेक्शन बेटा? 10, 14। किसी को 2 बच्चे हैं, क्या दोनों पढ़ रहे हैं? हाँ सर दोनों पढ़ रहे हैं। तो 100 रुपीज का एग्जाम्पशन मिलेगा एक के लिए और 12 महीने का होगा 2400। सो शी विल पे टैक्स ऑन द रिमेनिंग 9600। समझा या बाउंसर गया? समझा सर। समझा सर। एक मिनट, मैं अटेंडेंस वापस ले लेता हूँ। आज की तारीख है 6 अक्टूबर। MHFY.com। ओके डन। एक और बार ये लास्ट पॉइंट को रिकैप कर लेते हैं। So the exemption says that the child should be studying in a school or a college. And the second condition is the amount of exemption will be 100 rupees per month per child, maximum for 2 children. इसमें कुछ और पॉइंटर्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 11:20 हो चुका है, आपका जाने का समय हो गया है। फिर मुलाकात होगी हमारी अगले क्लास में। तब तक के लिए अपनी सेहत बनाए रखें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.